Welcome to my channel World Encyclopedia. Today we will discuss about the continent of Antarctica, the only continent of the world where there is no permanent population, there is no time zone, also there is no concept of proper days and nights. We will also come to know about the blood lake in Antarctica. Yes, blood lake. We will come to know the reality or the myth behind the blood lake. Then we will also discuss about the freshwater reservoirs in Antarctica. Also, we will discuss that why many of us consider the Antarctica as a dry zone. So, now we will discuss about the detailed video on it. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. Welcome to my channel World Encyclopedia. So basically, today's video is most interesting video of this channel. Here we will discuss about the continent of Antarctica. The only continent, most of us, we know that there is no permanent population in the continent of Antarctica. As we know, there are total 7 continents in the world. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. Now, most of you are thinking about that why I mentioned that this video will more interesting video, more amazing video. Yes, it will. Cause before it, I only shared the some study material, some lectures which are helping material for my dear students, some lectures about geography and the world information. But this video will more interesting video cause in this video we will discuss about the continent of Antarctica, which I consider the most beautiful and the most adventurous continent of the world. And it's bad luck that we all doesn't have permission to visit this place. Yes, we don't allow to visit this place. Many permissions, certain requirements are required to visit this place. So let's start our lecture, and now we will discuss about the continent of Antarctica. When we will observe the map, then we will come to know that Antarctica makes up most of the Antarctic region, the southern hemisphere of the world. Area-wise, Antarctica is the 5th largest continent of the world. But according to the population, we consider that there is no permanent population here. Why there is no population here? The whole continent is covered under the thick ice sheets. It's predicted that whole Antarctica is covered under the 5 kilometer thick ice sheets. Yes, 5 kilometer thick ice sheets makes it impossible for the settlements of the human beings and other species. It's next to impossible. Now we will discuss about that why there is no permanent zones in the Antarctica. Antarctica में कोई भी permanent zone exist क्यों नहीं करता है? So the basic and only reason is that Antarctica is existed in the southern hemisphere. That's why usually it predicted that there is no permanent zone. So यहाँ पर टाइम को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है? टाइम को ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है, यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं वो यूजुअली अपने इलाके का टाइम फॉलो करते हैं. Apart of the time zones, there is no concept of its flag. Antarctica there is no its official flag. So the only continent without flag, without time zone, without concept of days and nights. Yes, it's reality. 6 months Antarctica observed the sunlight and 6 months Antarctica observed the darkness. Another amazing fact about the Antarctica. So अगर एंटार्क्टिका आप जाएंगे तो एंटार्क्टिका में क्या है कि एंटार्क्टिका में अब किसी भी तरह का टाइम जोन फॉलो नहीं कर सकते हैं. यूजुअली ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना लोकल टाइम जोन ही फॉलो करते हैं. जो भी टाइम जोन है उनके अपने इलाके अपने कंट्री का टाइम जोन फॉलो किया जाता है. चूँकि यहाँ पर 6 महीने सूरज की रोशनी रहती है, 6 महीने रात का अंधेरा रहता है. सो दैट्स वाई ये जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना डेज एंड नाइट्स का, जो यूजुअली कॉन्सेप्ट लाइक डेज एंड नाइट्स का हम बाकी एरिया में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट बाकी तमाम एरियाज़ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो यहाँ पर एंटार्क्टिका में ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता है. एंटार्क्टिका में इस बात का कोई तस्वर मौजूद नहीं है. नाउ हर इज़ अनदर क्वेश्चन
that when there is no time zone, there is no proper flag, there is no concept of days and nights. So there is any hospital, any market are here? Yes, maybe. The answer is maybe. Why the answer is maybe? Maybe because when the people are gone here, so obviously they carried their necessary elements, necessary materials which they need her. अब एंटार्क्टिका में चूंकि परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको कोई प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जो नहीं मिल सकती, कोई भी प्रॉपर हॉस्पिटल मौजूद नहीं होगा। खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तो वीडियो लिंक के ज़रिए, वीडियो लिंक एक ऐसा यहाँ पर प्रोसीजर, एक ऐसी चीज़ है कि वीडियो लिंक के ज़रिए हम दूसरी जगह पर कनेक्ट होकर जो भी कोई इशू है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक अनदर इशू कि वीडियो लिंक के ज़रिए भी आपने जब दूसरे ममालिक से रब्ता करना है, तो दूसरे ममालिक से रब्ता करने के लिए आपको इंटरनेट सिग्नल्स की नीड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटार्क्टिका is under the zero internet signal. There is no internet. Why there is no internet? As we know that we receive the internet signals due to the satellite system, which provide the internet signals in all over the world. When these satellites are passed around the Antarctica, then usually people receive these signals, and this time usually 3 to 4 hours in one day. वहाँ पर जो लोग भी वर्क करने गए होते हैं वो जस्ट सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद सिग्नल वहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। कि दुनिया से जितना रब्ता करना है, जो भी रब्ता करना है, जस्ट इन 3-4 घंटों के अंदर ही आप रब्ता कायम कर सकते हैं, इसके अलावा रब्ता कायम नहीं किया जा सकता। सेकेंड ऑफ ऑल, एंटार्क्टिका एडवेंचरस तो है, आप नेचर के करीब हैं, आप एंटार्क्टिका में जाकर बहुत सारी नई रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में इन्फो हासिल कर सकते हैं। इट्स आल्सो प्रेडिक्टेड दैट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन एंटार्क्टिका। अपार्ट दैट, एन अदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट एंटार्क्टिका that there is no region, no country is ruling in Antarctica. एंटार्क्टिका में कोई भी रूल नहीं करता है, एंटार्क्टिका किसी की भी मलकियत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उसे ओन करते हैं, हमारे पास राइट होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। लेकिन एंटार्क्टिका दुनिया का ऐसा रीजन है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं करते हैं। इसके सिलसिले में एक ट्रीटी साइन की गई थी। अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रीटी, एंटार्क्टिका की डिफरेंट जो थिंग्स है, ज़मीन है, उन्हें यूज़ तो किया जा सकता है, बट एंटार्क्टिका को कोई भी ओन नहीं कर सकता। एंटार्क्टिका किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आती। कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहेगा कि एंटार्क्टिका उसका अपना है। आप एंटार्क्टिका को जाएं, अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करें, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, नॉलेज लें, आगे फैलाएं, लेकिन आप एंटार्क्टिका की किसी भी चीज़ पर अपना राइट शो नहीं कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई देयर इज़ यूजुअली साइंटिस्ट gone in the continent for the research. So the right answer of this question is usually the sky is clear in most of the time. The clear sky have a chance, the clear sky have a more possibility to research about the space, to research about the astronomy, to research about the other celestial bodies. That's why it make easy for the collect the information about space, collect information about the heavenly bodies and the celestial bodies. यानी कि एंटार्क्टिका में ये बात तो है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो स्काई है, वो यूजुअली क्लियर रहती है। तो क्लियर स्काई आपको ज़्यादा चांस दे देती है कि आप अपने जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा ईजीली है। Apart that, Antarctica is the only region where the scientists observed the certain meteorites. What is meteorites? Meteorites basically वो particles हैं जो कि हमारी ज़मीन का हिस्सा नहीं होते,
जो कि मेट्योराइट्स कहाँ से आते हैं, स्पेस से, जो दूसरे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनका पार्ट होते हैं। अब ये बाकी ज़मीन पर ऑब्ज़र्व क्यों नहीं किए जा सकते, सिर्फ एंटार्क्टिका पर ही ऑब्ज़र्व क्यों हो सकते हैं? बिकॉज फुली एंटार्क्टिका आइस शीट से कवर है। जब एंटार्क्टिका पूरा आइस शीट से कवर है, तो पूरा आइस शीट से कवर होने की वजह से कोई भी मेट्योराइट्स जो यूजुअली पत्थर की तरह होते हैं, जब वो मेट्योराइट गिरेगा तो वो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंटार्क्टिका इज आल्सो द होम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेंगियंस। पेंगियंस, यस, पेंगियंस जो यहाँ की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, यहाँ की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करते हैं, इंसानों के अलावा। बेसिकली इंसानों को ज़्यादा परमिशन तो है नहीं। गर्मी के टाइम, यानी कि जब एंटार्क्टिका में सूरज निकला हुआ है, तब यूजुअली प्रेडिक्ट किया जाता है कि 1000 टू 2000 तक लोगों को रहने की परमिशन है। लेकिन जहाँ पर जो एक्सट्रीम सर्दी का सीज़न है, कि जिसमें कोई भी प्लेन वाला लैंड नहीं कर सकता, तब जस्ट 5 टू 600 या 3 टू 500 लोगों को रहने की परमिशन है। क्योंकि जब एक्सट्रीम सर्दी का सीज़न होता है तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी प्लेन को लैंड करवाया जाए। अब प्लेन लैंड कैसे करवाया जाता है? ऑफ कोर्स जो बर्फ़ की सरफेस है वो उसके लिए स्लिपरी होती है, स्लिपरी सरफेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बट क्या किया जाता है, इसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढा गया। सॉल्यूशन कैसे ढूंढा गया? पहले बर्फ़ को अच्छे से कंप्रेस करके जहाज़ों के लिए एक प्रॉपर रनवे की सूरत में बनाया जाता है ताकि जहाज़ इजीली लैंड कर सके। लेकिन ऐसा सिर्फ साल के 1 माह में ही होता है। उसके बाद जब आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट आ गया तो तब एंटार्क्टिका में जाने की, वहाँ पर दाखिले की या वहाँ से आने जाने की सारी जो चीज़ें हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। नाउ वी विल नो दैट एंटार्क्टिका is made up of ice sheets. So the ice sheets is the only, and we can say that Antarctica is the source of world fresh water. अब ये वर्ल्ड फ्रेश वाटर का सोर्स कैसे है? इसके ग्लेशियर में जितना भी जमा हुआ है बर्फ़ है, वो सारा सोर्स है फ्रेश वाटर का, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत प्रीशियस सोर्स है। बट क्या है कि हम जो ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की रिसर्च कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जिसकी ब्लास्ट्स कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें ज़मीन पर जो डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस है वो ज़मीन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना एंटार्क्टिका की बर्फ़ को बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है। सो एंटार्क्टिका के बारे में जबकि ऑलरेडी हमने कह दिया कि अर्थ की फ्रेश वाटर का रिजर्वायर है, तो यहाँ पर क्या पानी भी मौजूद है? नो वे। द आंसर इज़ नो। एंटार्क्टिका में आपको आइस शीट्स तो मिल जाती हैं, बट एंटार्क्टिका में आपको कभी भी पानी नहीं मिलेगा। कभी भी मीन्स के मोस्ट ऑफ द टाइम जब नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली कभी भी आपको पानी नहीं मिल रहा। यूजुअली समटाइम्स जब यहाँ पर सूरज चमक रहा है, कुछ लेक्स नमूदार होती हैं, कुछ आइस शीट्स के नीचे भी लेक्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ हर तरफ नज़र आएगी। तो अब अगर यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है तो दैट मीन्स पूरे कॉन्टिनेंट पर कोई ड्राई पार्ट नहीं है। क्या ख्याल है आपका, ऐसा ही है? आई थिंक, बट नो, ऐसा नहीं है। एंटार्क्टिका में जहाँ पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहीं पर दुनिया का सबसे ड्राई जोन, ड्राई रीजन भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर ड्राई जोन क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज एंटार्क्टिका में फ़िज़ा में बिल्कुल भी नमी मौजूद नहीं है। हम जिस भी जगह पर रह रहे हैं, हम दुनिया के किसी भी जोन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर फ़िज़ा में हमेशा नमी, मॉइस्चर कंटेंट मौजूद रहता है। लेकिन एंटार्क्टिका में मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हैं, जो कि सरफेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्राई कर रही हैं। दैट्स वाई वर्ल्ड का सबसे ड्राई रीजन, सबसे ड्राई जोन भी एंटार्क्टिका में ही एग्जिस्ट करता है। एक और प्रोमिनेंट चीज़ जो कि सिर्फ एंटार्क्टिका में पाई जाती है। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंटार्क्टिका में जो यूजुअली एक ब्लड लेक का कॉन्सेप्ट है, क्या ये रियलिटी है कि एंटार्क्टिका में वाकई की ब्लड लेक मौजूद है? सो इसका आंसर, अगर तो आप डिफरेंट इवन के वीडियोस पे उठा के देख ले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मौजूद हैं कि एंटार्क्टिका में ब्लड लेक मौजूद है, बट द आंसर इज देयर इज़ नो ब्लड लेक इन एंटार्क्टिका। यस, देयर इज़ अ लेक which exists, that's color is red, its reddish color seems that it's blood lake.
it seems that maybe under this some aliens are exist. Some are predicted that यहाँ पर कोई aliens रह रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कभी किसी ज़माने में बड़ी जंग हुई होगी तो उन इंसानों का खून है। लेकिन बज़ाहिर क्या है कि वो जो रेड कलर है वो ब्लड का नहीं है, ब्लड की तरह नज़र ज़रूर आ रहा है लेकिन वो कलर आपका ब्लड का नहीं है। तो रेड कलर किसका है आपके ख्याल में? अगर रेड कलर ब्लड का नहीं है तो रेड कलर किसका हो सकता है? इसका आंसर है बहुत ही आसान। एक्चुअली यहाँ पर आइस शीट्स के नीचे एक लेक मौजूद है, वाटर लेक मौजूद है, लेक जिसमें पानी मौजूद है। अब क्या है कि जब ये पानी नीचे बर्फ़ के नीचे से आइस शीट्स के नीचे से बाहर आकर बहता है, अब इस पानी में क्या है कि आयरन के ज़रात पाए जाते हैं। जब ये बाहर आकर हवा से कांटेक्ट करती है, हवा से कांटेक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो रही है आयरन सल्फाइड की फॉर्म में। जब आयरन सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो इसका कलर ऑटोमेटिक रेडिश फॉर्म में होता है। जिस तरह आप अपने कॉमन वर्ल्ड में भी देखें, जब लोहे को ज़ंग लगना शुरू हो जाता है तो लोहे को जो ज़ंग लगने का प्रोसीजर, उसमें लोहे का कलर यूजुअली ऑरेंज टाइप, लाइट ऑरेंज या रेड टाइप होता है। सेम यही फिनोमेना अप्लाई हो रहा है अंटार्कटिका में। आइस शीट के नीचे एक वाटर लेक मौजूद है। उस वाटर लेक का पानी जब बाहर आता है उसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा है। जब वो बाहर आता है तो वो हवा से जब कंटेंट में आता है तो वो आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई ये रीजन, ये एरिया ऐसा मौजूद है जहाँ पर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर एक ब्लड लेक मौजूद है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ब्लड लेक नहीं है, ब्लड लेक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो आपके डिफरेंट मिथ्स हैं कि कभी कदीम ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की डेथ्स हुई होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हिस्ट्री हमें इतना ज़रूर बताती है, अंटार्कटिका के अंदर से डिफरेंट इंसानों के ढांचे मिले हैं। ढांचे भी ऐसे कि हमारा अगर आम तौर पर जो स्कल्प देखा जाए, जो स्केलेटन देखा जाए, जो सर का स्कल्प है वो यूजुअली छोटा है। अंटार्कटिका में जितने भी स्कल्प्स मिले हैं उन स्कल्प्स का साइज़ बहुत बड़ा है। ऐसे स्कल्प्स यूजुअली साइंटिस्ट को मिस्र के इलाकों से भी मिले थे। यानी कि ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि शायद यहाँ पर ज़माने कदीम में कभी लोग रहा करते थे, लेकिन अब इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। मोर ओवर यहाँ पर डिफरेंट तरह के जानवरों के ढांचे मिलते हैं। ऐसे अजीबो-गरीब जानवरों के ढांचे मिलते हैं जो कि ये चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर कभी ज़माने कदीम में मुख्तलिफ़ तरह के जानवर भी पाए जाते थे जो कि अब नापैद हो चुके हैं, जो कि अब मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। अब वो नापैद क्यों हो चुके हैं? डिफरेंट रीज़न है, सर्टेन रीज़न है जिसकी वजह से नापैद हो चुके होंगे। लाइक अंटार्कटिका की जो 5 किलोमीटर की आइस शीट्स है वो एक ही दफ़ा में तो नहीं बन गई। लेयर बाय लेयर हर दफ़ा बर्फ़ जब गिरती रही है तो ये आइस शीट्स वजूद में आई हैं। इसी तरह में भी यहाँ पर ऐसे जानवर, ऐसे जानदार मौजूद होंगे जो पहले कम सर्दी को तो बियर कर लेते होंगे, सर्दी ज़्यादा होगी उनका वजूद ख़त्म हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक बिल्ली का ढांचा मिला है और जब इसका मुकम्मल एनालाइज़ किया गया तो पता ये लगा कि ऐसी बिल्ली मिली है जो शायद कभी अंडे दिया करती थी। है ना अजीब कॉन्सेप्ट? अंटार्कटिका के बारे में एक और अजीबो-गरीब हक़ाइक़। रियलिटी क्या है ये तो ख़ैर वही लोग बता सकते हैं जो वहाँ पर कभी मौजूद हुआ करते थे, जो कि इस दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। एट लास्ट अब हम ज़िक्र कर लेते हैं कि अंटार्कटिका में जब हर साल लोग जा रहे हैं, लोग तो जाते हैं, चाहे टूरिस्ट जाएँ, चाहे रिसर्च पर्पसेस के लिए जाएँ, तो वो अंटार्कटिका में वहाँ पर जहाँ जाकर रहते कैसे हैं? तो अंटार्कटिका में रहने के लिए बेसिकली यूएस ने, आप कह लें कि जो यूएस है उन्होंने सबसे पहले जब वो अंटार्कटिका में गए तो उन्होंने ये सोचा था कि अंटार्कटिका में रहने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए प्रॉपर उनके पास कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसी स्पेस मौजूद होनी चाहिए जहाँ पर वो अपना स्टे कर सके। अब अंटार्कटिका में कोई भी स्टेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम था। सबसे पहले इग्लू क्रिएट किया गया, इस तरह का एक स्टेशन बनाया गया, लेकिन वो क्या होता था, साल के 6 महीने बर्फ़ के नीचे दब जाता था। देन यहाँ पर एक यूएस स्टेशन कायम किया गया। अब स्टेशन किस तरह कायम किया गया? स्टेशन ऐसे कायम किया गया कि उसे ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचा करके बनाया गया ताकि वो अंटार्कटिका की बर्फ़बारी से महफूज रह सके। लेकिन फिर भी हर 2 से 3 साल के बाद वहाँ से बर्फ़ को साफ़ किया जाता है, बर्फ़ को हटाया जाता है, बर्फ़ को वहाँ पर क्लियर किया जाता है। ये थे अंटार्कटिका के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दैट डजंट मीन कि मैंने शायद सारे फैक्ट्स डिस्कस कर लिए होंगे, बट स्टिल वी डिस्कस्ड सम ऑफ द फैक्ट्स
And also we discussed that why Antarctica is most amazing, most interesting and most unique continent of the world. So Antarctica को कौन सी बात ज़्यादा यूनिक बना रही है? आपके ख्याल में ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट सेक्शन का वेट मुझे रहेगा। आई कम टू नो दैट व्यूअर्स को और मेरे स्टूडेंट को ऐसी कौन सी ज़्यादा चीज़ यहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग लगी है। वेल मैं अपना भी बता देती हूँ। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग होगी आई थिंक यहाँ के क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। शायद अगर लाइफ ने चांस दिया तो आई थिंक आई विल ऑब्जर्व इट्स क्लाइमेट। लाइक 6 महीने अगर सूरज की रोशनी है, 6 महीने रात है, वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट कि मुझे लगता है कि जब हर चीज़ बर्फ़ बन रही है तो वो देखना, वो ऑब्जर्व करना लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीक से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अंटार्कटिका के बारे में आज हमने जाना कि अंटार्कटिका क्यों सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक, सबसे नाइस एडवेंचरस कॉन्टिनेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ दूसरे लोगों का ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे किसी एक और इंटरेस्टिंग, नाइस सी, प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।